Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. एक बच्चे की मृत्यु होना सीरिया में या किसी एक पॉलिटिकल करप्शन का उजागर होना इंडिया में या किसी एक दूर दराज की गैलेक्सी में किसी स्टार का जन्म होना या आपका इस वीडियो पर यूट्यूब वीडियो पर क्लिक कर देना, क्या आपस में कोई कनेक्शन है या सारे जो इवेंट्स हुए हैं ये सारे रैंडम हैं? अकॉर्डिंग टू लेबनीज, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. There is a pre-established harmony even at the minutest level. So whether you believe it or not, but everything happens for a reason. Which means whatever is going to happen will be necessarily going to happen. The events are not contagious. They are not contingent. जैसा होना है वैसा होकर के रहेगा. There is a harmony even at the minutest level. Welcome to the Study IQ. In this video, we will going to discuss Leibniz philosophy, one of the last and most radical rationalist within the three groups of rationalists: Descartes, Spinoza, and Leibniz. As in the last lecture, we have discussed that Spinoza established one substance, which is all-inclusive substance. Everything was necessarily coming out of the substance. Spinoza's substance like ocean, and all the worldly activities, all the galaxies are nothing but the waves and ripples in that ocean, originating from the ocean, sustaining in the ocean, and ultimately merging into that ocean. So there are no attributes of the ocean. Spinoza is considered one of the most consistent philosophers among all the three, because the definition of substance was very much powerful and impactful of Spinoza. But there are many criticisms of Spinoza, like he failed to describe the worldly experience, or you can say diversity. Many thinkers ask that Spinoza, who we are in that substance, what is our place, what we are doing in this substance. You are saying that everything is governed by natural laws. Where is my free will? What I am doing in this substance? My identity is lost. The entire diversity is lost. You created an abstract substance. So worldly experience is very hard to describe with that rational system of Spinoza. On that premise, one more mathematician came named Leibniz. He criticized Spinoza. He said that Spinoza's substance is abstract, but I will create a concrete substance. And he started dividing that substance. Division, 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 and he reached up to the last point of division, and he said that this last point of division, okay, that was monism. That was the monist substance of Spinoza. He started dividing that substance up to the last point, where after this point, you can say further division is not possible. Further division is not possible. After this substance, further division is not possible. Leibniz said that this is the substance. This undivisible, this is indivisible, atomic thing is the substance. Now Spinoza said, Leibniz said that if I will say that this last indivisible atomic substance is what? Conscious atom, then I can call it substance. Why? Because if there is a matter is extended. And anything which is extended can be divisible further, which means you cannot expect or you cannot accept matter to be substance. The last indivisible particle in the process of division is the substance, and that must be conscious, that must be spirit. So the last indivisible particle
in this division is the spirit or conscious atom, and that is substance. Spinoza, Leibniz called it monad, and Leibniz said that there are infinite number of monads. Leibniz का कहना है कि यहां पे एक सब्सटेंस नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंस है, पूरी दुनिया मोनाड्स से मिलकर के बनी है। ये लेबनीज का अपना तरीका है दुनिया को एक्सप्लेन करने का, डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का। स्पिनोजा फेल हो गए, स्पिनोजा बता नहीं पाए। स्पिनोजा का लॉजिकली आप देखेंगे, मैथमेटिकली आप देखेंगे, फिलोसॉफिकली आप देखेंगे तो सब्सटेंस की डेफिनेशन बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ा कंसिस्टेंट फिलोसफर है स्पिनोजा, लेकिन डाइवर्सिटी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। लेबनीज वहीं से उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, सब्सटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंस, यहां पे कोई एक सब्सटेंस नहीं है, यहां पे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, प्लूरलिज्म। जैसे कि हमने देखा भी था वहां पे कि डेकार्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूअलिज्म, स्पिनोजा established monism, one substance, and Leibniz established what? Plurals. N number of substance, or you can say infinite number of monads. Everything is nothing but monad, aggregate of monads. These monads are conscious atom. Spiritual atom. They are active, or they are, you can say, active force, dynamic. Consciousness is their essence. Consciousness is their essence. Monads are qualitatively alike and quantitatively different. Qualitatively alike and quantitatively different. क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इनकी क्वालिटीज तो सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली आप जाओगे तो बहुत डिफरेंट। क्वालिटी मींस कॉन्शियसनेस इज देयर क्वालिटी, लेकिन अलग अलग मोनाड में जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो वेरी करती है, सेम नहीं है। एंड इन दिस मैनर मोनाडोलॉजी ऑफ लेबनीज स्टार्टेड। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि लेबनीज की फिलॉसफी में दुनिया की हर चीज मोनाड से मिलकर के बनी, और मोनाड एक्टिव फोर्स है, कॉन्शियस, मैटर नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज कॉन्शियसनेस है। लेबनीज की फिलॉसफी मैटर एक्सेप्ट ही नहीं करती है। लेबनीज ये कहते हैं कि यहां तक कि आपको मैटर, ये पेन, बाकी फिलॉसफीज में मैं ये कहता हूं कि ये जो पेन है ये मैटर है, ये अनकॉन्शियस, इसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड है। लेबनीज कहते हैं नहीं, ये भी मोनाड्स से मिलकर के बने, लेकिन इसमें जो मोनाड्स हैं वो बेयर मोनाड्स हैं, अनकॉन्शियस मोनाड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्शियसनेस अचीव नहीं कर सकता है, कर सकता है, ग्रेडेशन है, लेकिन क्वालिटी सबकी सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है। आपके अंदर जो मोनाड है और स्पेन के अंदर जो मोनाड है उनमें फर्क है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का। अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं, दे ऑल अलाइक, दैट इज क्वालिटेटिवली अलाइक। दुनिया की हर चीज क्वालिटेटिवली सेम है, उनमें फर्क नहीं है, क्वांटिटेटिवली फर्क है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का फर्क है। बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया है, अष्टावक्र महागीता। एक है भगवद गीता, एक है अष्टावक्र महागीता। आप पढ़ेंगे उसमें तो अष्टावक्र राजा जनक से यही कहते हैं कि दुनिया की हर चीज में ही तो ब्रह्म है, दुनिया की हर चीज में तो कॉन्शियसनेस है। आपको नहीं लग रहा कि लेबनीज की जो फिलॉसफी है वो अष्टावक्र महागीता के उस कॉन्सेप्ट से मैच खाती है? क्योंकि अष्टावक्र भी यही कहते हैं कि दुनिया की हर चीज में तो तुम हो और तुम में वो हर चीज है, फर्क सिर्फ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का है, डिग्री ऑफ इग्नोरेंस का है। यहां पे डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत कम है या है ही नहीं, इस वजह से ये मैटर कहलाता है। यदि ये इसकी डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस जागृत कर ले तो ये भी सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है।
लेबनीज की इसी फिलॉसफी को आप श्री अरविंदो या महर्षि अरविंद से कंपेयर करेंगे, वहां पे भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। महर्षि अरविंद कहते हैं कि दुनिया का कण कण, कण कण में भगवान है, कण कण जो है एक पत्थर का टुकड़ा है, वो भी स्पिरिट है, और वो भी डिवाइन क्वालिटी अपनी गेन कर सकता है फिर से। एंड दैट इज व्हाई ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये जो लेबनीज की मोनाडोलॉजी है, यहां पे अनकॉन्शियस कोई है, मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का फर्क, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है तो वो टॉप मोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन मैटर कुछ भी नहीं है, सब चीजें स्पिरिट है। बड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, इसके पैरेलल्स आप जब समझेंगे फिलोसफी को तो आप अष्टावक्र महागीता से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडियन फिलोसफी में आप बहुत सारी जगह, आप बहुत सारे महर्षि अरविंद से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रल योगा कहते हैं, वहां पे भी लगभग यही फिलोसफी मिलती है, ठीक है। तो देखो ये वेस्टर्न फिलोसफी में ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ड्यूअलिज्म हमने देख लिया था, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे मोनिज्म था, तो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इंटरेक्शनिज्म था, यहाँ पे इन्होंने माइंड बॉडी पैरेललिज्म की बात करी थी, और लेबनीज का प्लूरलिज्म अभी समझता है। तो पहली चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि दुनिया में हर जगह सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मोनाड्स। दुनिया की हर चीज कॉन्शियस मोनाड्स से मिलकर के बनी हुई, सारे मोनाड्स कॉन्शियस हैं, बस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का फर्क है। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग क्वालिटेटिवली अलाइक एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। दुनिया की कोई सी चीज मैटर है ही नहीं, जो आपको मैटर दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां पे कॉन्शियसनेस की कमी है। व्हाई मैटर कैन नॉट बी द फाउंडेशन, उन्होंने आंसर भी किया। लेबनीज यहां पे कहते हैं, देखिए लेबनीज क्या कहते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। लेबनीज कहते हैं व्हाई मैटर कैन नॉट बी द कॉन्शियसनेस, ठीक है। व्हाई अ ट्रू फंडामेंटल सब्सटेंस मस्ट बी सेल्फ एग्जिस्टेंट, ठीक है, मस्ट बी सेल्फ एग्जिस्टेंट, इंट्रिंसिकली एक्टिव एंड स्ट्रिक्टली सिंपल, हैविंग नो पार्ट्स। मैटर के पार्ट्स होते हैं, मैटर को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि एक्सटेंडेड होता है, और एक्सटेंशन का डिवीजन पॉसिबल है। लेबनीज का कहना है कि भाई ट्रू सब्सटेंस जो होगा वो सेल्फ एग्जिस्टेंट होगा, एक्टिव फोर्स होगा, पैसिव नहीं होगा, और तीसरा अनएक्सटेंडेड होगा, मतलब सिंपल होगा, एटॉमिक होगा, और ऐसा सिर्फ मोनाड है, मैटर नहीं है। The logical proof, because physical matter extension is infinitely divisible, it can never truly be simple, and therefore the ultimate building block of reality must be unextended, spiritual and indivisible। और ऐसी जो रियलिटी है उसी को यहां पे लेबनीज क्या कहते हैं, लेबनीज उसी ऐसी रियलिटी जो कि इनडिविजिबल है, अनएक्सटेंडेड है एंड स्पिरिचुअल है, उसको उन्होंने कहा मोनाडो monads. There are infinite number of monads which are qualitatively alike and quantitatively different, very very different। बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, यहां पे मैटर है ही नहीं, ठीक है। सो मोनाड्स आर द स्पिरिचुअल एटम। मोनाड्स क्या है, स्पिरिचुअल एटम, ठीक है। The definition from the Greek, the true metaphysical atom of the nature. Monads are the true atoms of nature and the word of the elements of the thing, ठीक है। इसके अलावा लेबनीज ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको भी मैं आप लोगों को समझाता हूं बड़े अच्छे से, ठीक है। लेबनीज का कहना है कि मोनाड्स आर विंडोलेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोनाड्स आर विंडोलेस। क्या होता है मोनाड्स विंडोलेस? लेबनीज का कहना है कि देखिए एक मोनाड है, ये दूसरा मोनाड है, ठीक है। These two monads are windowless. Windowless का मतलब होता है these monads are inert system. Inert system. These monads are world in miniature. World in miniature. ये जितने भी monads हैं ये inert system है, मतलब ये बाहर के किसी भी व्यक्ति से कोई interact नहीं करते हैं, which means nothing is coming in
and nothing is coming out. Nothing is coming out. Nothing is coming out. ये जितने भी मोनाड्स हैं ये क्या है? वर्ल्ड इन मिनिएचर. अपने आप में ही एक दुनिया है, एक छोटा सा पार्टिकल है, अपने आप में एक दुनिया है. ना तो बाहर से कोई सी चीज अंदर आती है, ना अंदर से कोई सी चीज बाहर आती है, which means they are not interacting with each other. Two monads are there, but they are not interacting with each other. They are windowless. They are world in miniature. पूरी दुनिया का जो रहस्य है उस एक मोनाड के अंदर छुपा हुआ है, तो उसको बाहर से रिएक्ट करने की, बाहर से इंटरैक्ट करने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, सिंगल मोनाड. यही बोला है, monads have no physical dimension, no causal interaction with the outside world is possible. All changes strictly internal. दुनिया के सारे चेंजेस जो आपको बाहर दिखाई देते हैं आपके, वो आपके अंदर भी हो रहे हैं. आपके अंदर, आप खुद के अंदर क्या है? पूरा ब्रह्मांड है. यू आर द ब्रह्म. उस प्रकार की फिलॉसफी है कि हर एक मोनाड जो है वो वर्ल्ड इन मिनिएचर. जो बाहर चेंजेस आपको होते हुए दिख रहे हैं वो मोनाड के अंदर भी हो. मोनाड को किसी भी प्रकार के कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. दे हैव नो विंडोज थ्रू विच एनीथिंग कुड कम इन और कुड गो आउट. ठीक है, इनर्ट सिस्टम है आपका. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, सो दीज आर द 8 पिलर्स ऑफ ट्रू सब्सटेंस. Indivisible, that is no parts, no physical space. They are eternal. Monads are eternal. They are not created by anything because substance is independent, self-existent. इसको किसी और के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए. स्पिरिचुअल है, ये तो मैंने बता ही दिया कि सोल एट्रीब्यूट ऑफ मोनाड इज कोजिट. ठीक है, एक्टिव है, इनहेरेंट फोर्स है, सेल्फ कंटेन्ड है, इंटायर पास्ट फ्यूचर हिस्ट्री इज फोल्डेड विद इन. पूरा सब कुछ मोनाड के अंदर है, कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. विंडोलेस है, इम्यून फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कोजेस, यूनिक है, नो टू मैथमेटिकली आइडेंटिकल. एक और चीज है, बोलते हैं कि दो मोनाड एक दूसरे के समान नहीं हो सकते. ये रूल भी दिया है, मैं आपको रूल ही दिखाता हूं. देयर आर 3 रूल्स ऑफ मोनाडोलॉजी, है ना. दीज आर द 3 रूल्स ऑफ मोनाडोलॉजी. ठीक है, कौन कौन से? रूल्स ऑफ कंटिन्यूटी. मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूं. These are the 3 rules of monadology, right? 3 rules of monadology: law of continuity, law of gradation, and law of identity of indiscernible. मोनाडोलॉजी की ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख रूल है. अब वो रूल्स क्या क्या हैं उनको अच्छे से समझते हैं. पहला, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो मोनाड्स हैं, ठीक है, आप एक मोनाड से दूसरे मोनाड में कैसे पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है. मोनाड्स आर लाइक नंबर सिस्टम, लाइक फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, है ना. द चेंजेस आर इम्परसेप्टिबल. आप परसीव नहीं कर सकते कि आप काउंट करते समय 1 से 2 में, 2 से 3 में कैसे आ गए. इसी प्रकार से, है ना, nature make no leaps between any 2 monads. There are infinitely many intermediate grades. 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से मोनाड्स जमे हुए हैं, कंटिन्यूटी के साथ है. ठीक है. दूसरा है लॉ ऑफ ग्रेडेशन. ऑल मोनाड्स शेयर एग्जैक्ट सेम इसेंशियल स्पिरिचुअल नेचर, डिफरिंग ओनली क्वालिटेटिवली इन क्लैरिटी ऑफ देयर परसेप्शन. तो मोनाड्स क्वांटिटेटिवली डिफर करते हैं, क्वालिटेटिवली तो सेम ही है. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि मोनाड्स जो है ना वो एक कंटिन्यूअस सीरीज में जमे हुए. जैसे कि सबसे लोअर कॉन्शियसनेस वाले मोनाड हैं, फिर उनसे ज्यादा कॉन्शियसनेस आ जाएगी, फिर उनसे ज्यादा कॉन्शियसनेस आ जाएगी, फिर उनसे ज्यादा कॉन्शियसनेस आ जाएगी, और फिर यहां पे टॉप लेवल पे लेबनीज का कहना है कि यहां पर जो टॉप मोनाड है इट इज मोनास मोनाडम. मोनास मोनाडम, इट इज द सुप्रीम मोनाड. सुप्रीम मोनाड, it is highest conscious monad, highest level of consciousness.
यहां पर लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन्हें कहते हैं बेयर मोनाड्स। बेयर मोनाड्स, जो कि आपकी जितनी भी मटेरियल चीजें हैं वो यहां पे मिल जाती, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो प्लांट मोनाड, यहां पे प्लांट किंगडम आएगा, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ गया। फिर आ जाएगा आपका एनिमल किंगडम, ठीक है, आ गया एनिमल किंगडम, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस और बढ़ गई। फिर आ गए यहां पे आपके ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में भी ग्रेडेशन है, और टॉप मोस्ट पे मोनास मोनाड, ठीक है। ये एकदम अल्टीमेट हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हो गई, ठीक है। यहां पे आप बोल सकते हो कि एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सेंस या अनकॉन्शियस बोल दो, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस plants, they are conscious, human beings self conscious, and highest level of conscious. So these are the three laws of monadology. First, law of continuity, they are arranged in a continuous chain. सबसे लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस पे सारे मोनाड्स थे, जिसमें आपके सारे मटेरियल मोनाड्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट किंगडम, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ी, एनिमल किंगडम कॉन्शियसनेस और बढ़ गई, ठीक है। जैसे जैसे, क्योंकि मोनाड इज द एक्टिव फोर्स ना, तो आप देखो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी एक्टिवनेस बढ़ेगी, एक्टिवनेस बढ़ेगी, इसका मतलब ये कि प्लांट में एक्टिविटी कम है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन एनिमल में एक्टिविटी है, मूवमेंट है, तो एनिमल किंगडम थोड़ा और ऊपर आ गया। ह्यूमन बीइंग में और ज्यादा एक्टिविटी है तो और ज्यादा ऊपर, ह्यूमन बीइंग में भी एक्टिविटी के आधार पर ग्रेडेशन है, एंड टॉप मोस्ट मोनाड इज द गॉड, दैट इज मोनास मोनाड। इसे लेबनीज ने क्या कहा है? गॉड का। These are the three rules you can say of monadology. मोनाडोलॉजी के अंदर ही लेबनीज कहते हैं कि हर एक मोनाड की अपनी दो एक्टिविटीज होती है, ठीक है। These are the two activities of each monad. The first activity is perception and another activity is appetition. हर एक मोनाड दो प्रकार से काम करता है, ठीक है। एक उसका परसेप्शन होता है और दूसरा उसका एपिटिशन होता है। क्या होता है इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। सबसे पहले परसेप्शन पे, मोनाड एक्ट एज ए लिविंग मिरर। मैंने आपको बताया था कि मोनाड क्या है, अपने आप में वर्ल्ड इन मिनिएचर है। वर्ल्ड इन मिनिएचर मतलब जो दुनिया है वो पूरी की पूरी एक मोनाड के अंदर है, सिंगल मोनाड के अंदर, और ये एक आईने के जैसा है, ठीक है। अनकॉन्शियस, इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल रिफ्लेक्शंस लाइक इंडिविजुअल वेव्स ब्लेंडिंग टू मेक a roar of the sea. And apperception, that is conscious self reflective. Basically परसेप्शन का मतलब यह है कि किस तरीके से मोनाड आउटसाइड वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। आउटसाइड वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करना इज वन एक्टिविटी, दैट इज परसेप्शन। और एपिटिशन, इनेट सेल्फ मोटिवेशन फोर्स, जो इनेट ड्राइविंग एक्टिविटी होती है मोनाड की इंटरनल, उसे कहते हैं एपिटिशन। ज्यादा परसेप्शन ज्यादा एपिटिशन मतलब हायर मोनाड, लोअर परसेप्शन लोअर एपिटिशन मतलब लोअर मोनाड। आप खुद समझिए, आप दुनिया को बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट करते हैं या कोई एक एनिमल किंगडम या ये पैन, तो आप कहोगे सर हम ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन ज्यादा अच्छा है, मोर क्लियर द परसेप्शन। अच्छा, आपका ज्यादा परसेप्शन अच्छा है या एक योगी का जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है? आप कहोगे सर योगी का। द योगी इज रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड मोर क्लियरली देन अस। सो बेसिकली ऑल मोनाड्स, ठीक है, they all have perception, but depending upon their perception, depending upon their appetition, they are graded in a continuous series. That is law of gradation. ठीक है, सबसे धुंधला परसेप्शन, आपने ग्लासेस देखे होंगे, कांच देखा होगा, एक कांच जिसमें धुंधला धुंधला दिख रहा है, पानी हमने हटाया तो थोड़ा और साफ दिखने लगा। आप उसको है ना एक कागज लीजिए और उसको अच्छे से साफ कर दीजिए, परसेप्शन और क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक मोनाड का अपना दुनिया को रिफ्लेक्ट करने का तरीका है। जो जितने अच्छे से दुनिया को रिफ्लेक्ट करेगा उसका एपिटिशन उतना ही अच्छा, मतलब हायरार्की में वो मोनाड और ऊपर पहुंच जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड लॉ ऑफ ग्रेडेशन। ये दो एक्टिविटी मोनाड्स में होती है।
ठीक है, जो बेयर मोनाड्स हैं उनका धुंधला परसेप्शन है, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। जो अच्छे मोनाड्स हैं उनका क्लियर परसेप्शन है, वो दुनिया को एज इट इज रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल्स। लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इनडिसर्नेबल का मतलब है कि लेबनीज कहते हैं कि गॉड हैज नो रीजन टू क्रिएट टू सिमिलर मोनाड। गॉड के पास कोई रीजन ही नहीं था कि दो सेम प्रकार के मोनाड बना दे, इसलिए कोई भी दो मोनाड कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। हाँ, क्वालिटेटिवली सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली कोई भी दो मोनाड सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन, है ना। तो ये सारे मोनाड्स हैं, देखिए, है ना, ये सारे मोनाड्स जो बताए। सबसे नीचे आप जाएंगे मटेरियल मोनाड्स, बेयर मोनाड, ऑब्सक्योर परसेप्शन, फिर वेजिटेबल मोनाड, प्लांट, कंफ्यूज, ड्रीम लाइक स्टेट। ठीक है, उसके बाद एनिमल, एनिमल क्लियर सेंसेशन, मेमोरी। उसके बाद टॉप ह्यूमंस, क्लियर डिस्टिंक्ट रैशनल, एंड द लास्ट वन इज मोनास मोनाडम, दिस इज गॉड, परफेक्टली क्लियर, ओमनिशिएंट। तो सबसे टॉप मोस्ट मोनाड, ठीक है, कौन हो जाएगा? गॉड हो जाएगा। दैट इज क्रॉस कल्चरल नोट। लेबनीज इंडिविजुअल कॉन्शियस मोनाड शेयर डीप क्वालिटेटिव पैरेलल्स विद जीवास इन जैनिज्म एंड पुरुषास इन सांख्य फिलॉसफी। इसको यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन मोनाडोलॉजी, है ना। इस पे एक और लेक्चर आई थिंक हम ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी क्या होती है और माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म की जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए थे, क्या वो लेबनीज ने सॉल्व किया? We will discuss in the next lecture. I hope everything is clear to you. I will share this lecture along with the PDF in the group. Thank you so much. Study IQ IAS, making India smarter and better.